Friends, hope by this time you might have come to know that who are these CJP people. Uh, as you see on this screen, that Vijeta Daya, content writer for Duzati, the traitor sitting in Germany, and Saurav Das is supporter for Umar Khalid, the Tukde Tukde gang conspirator for cutting the chicken neck, the seventh state of India on northeast part. So he planned how to isolate those seven states from India. And also he's the key conspirator for Delhi riots where 51 total people killed. And recently he's in jail for the similar charges. Then you have the founder, which is Abhijit Dipke. Abhijit Dipke is Aam Aadmi Party social media person, as you see himself in Manish Sisodia, and he has conveyed that he will always be faithful to Aam Aadmi Party, Manish Sisodia, and all. And by the loot money of Aam Aadmi Party from Delhi liquor scam and Sheesh Mahal and all those, he has gone to Boston potentially to do some more conspiracy. And the fourth one is Ashutosh Raka. Ashutosh Raka is nothing but Aam Aadmi Party Rajasthan spokesperson. And irony is that in Rajasthan, maximum paper leak happened in 2017 to 2022, but Ashutosh Raka never talked a single word against Rajasthan Congress government paper leak in 2017 to 2022. And let me show you if if I put this. So you will see that if I put Ashutosh Raka, you see himself in Arvind Kejriwal, and here he say that, hey, I have next to nil photos with the person who has inspired me like no one else, so I decided to slightly shameless today. So he is putting his photo with Arvind Kejriwal, that Arvind Kejriwal is the one who inspired him today. There is no other proof you like to have that he's Aam Aadmi Party, person by chance over here. So here Ashutosh Raka, he's Aam Aadmi Party, and you see that he is the spokesperson for Aam Aadmi Party. Now, let's see that whatever the conspiracy they did and how it has turned up, what kind of support they have got really in Jantar Mantar. So Jantar Mantar, you know that day one there was hardly total 2000 people, and out of that 500 YouTuber and their cameraman and some people from nationalists. The real people who came on name of CJP were less than 200 to 300. So let's listen. Okay, you see the flyer itself or the headline itself, 22 million followers, only 1000 showed up. Afaz reality check. लोग जमा हो गए थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे, देखने आए थे। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ
1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद So let's see that what Ajit Anjum say, right? सब खराब होगी। कॉकरोचों ने आके 1.5 लाख आदमी खड़े कर दिए थे पीछे जो शंकरी। कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? नहीं, एक मिनट, कॉकरोच ने कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? कॉकरोच जनता पार्टी के 1500 लोग होंगे या बाकी 500 मीडिया वाले थे। मुश्किल से 2000 अगर सब जोड़ लें, मीडिया और जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो भी आए सब मिला के जंतर मंतर पर 1500 लोग होंगे, जिसमें 500-700 यूट्यूबर और मीडिया के लोग होंगे। लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ गए? आपने अजीत जी उनका वो देखा है ड्रोन से? यह लगभग 1-1.5 बजे की बात है। जनपद के बाद में जहां पर इनका धरना स्थल है उसके बीच में रोड है। सड़क से जो आप देखें और शांग्रीला तक ऊपर ड्रोन से देखिए आप पूरे। सर वो कोई आपने, माफ करिए मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, लेकिन वो कोई आपने कहीं कुछ देखा है एआई वाला? क्योंकि मुमकिन नहीं है कीर्ति आजाद जी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग अलग-अलग वहां पर के अलग-अलग ड्रोनों के 1 लाख नहीं 40-50 होंगे, लेकिन भरे हुए थे। चलिए खैर वो विषय से डेविएट करेंगे, उतने भी वहाँ मुमकिन नहीं है, परमिशन ही नहीं थी। सब खराब होगी। तो कॉकरोचों ने आके ये 1.5 लाख आदमी देखिए खड़े कि कर दिए थे 1.5 लाख आदमी पीछे कीर्ति आजाद बोलने की ट्राई कर रहा है। कॉकरोच ने कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? कॉकरोच जनता पार्टी के 1500 लोग होंगे या बाकी 500 मीडिया वाले थे। मुश्किल से 2000 अगर सब जोड़ लें, मीडिया और जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के। तो 1500 आदमी उनके थे। अजीत अंजुम जो कि मोदी के पक्ष में इंक्लाइंड नहीं है। सेम वे अल्फा शेरवानी, शी हैज़ आल्सो टोल्ड कि 2000 से कम लोग हैं, और उसका जो विस्तृत सेग्रीगेशन है वो अजीत अंजुम ने दिया है। जबकि कीर्ति आज़ाद 2 लाख आदमी वहाँ पे बता रहा था। तो सोचिए कि क्या चल रहा है। सब खराब होगी। कॉकरोचों ने आके 1.5 लाख आदमी खड़े कर दिए थे पीछे जो शंकरी। कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? नहीं, एक मिनट, कॉकरोच ने कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? कॉकरोच जनता पार्टी के 1500 लोग होंगे या बाकी 500 मीडिया वाले थे। मुश्किल से 2000 अगर सब जोड़ लें, मीडिया और जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो भी आए सब मिला के जंतर मंतर पर 1500 लोग होंगे। तो 500 से 1000 आदमी से ज़्यादा नहीं थे। तो फिर इन्होंने क्या किया? यह झूठ कैसे फैलाया गया ये देखते हैं। तो मैं अपने ही YouTube पे लिए चलता हूँ, जहाँ where he was welcomed by family अभिजीत members and supporters. दिपके 6000 लोग बता रहे हैं। हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7,000 लोग आए हुए थे और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में 6 से 7,000 लोग, 6 से 7,000 लोग ये कह रहा है। जबकि आप नीचे इसी स्क्रीनशॉट में, आप इसी वीडियो में नीचे फुटनोट पढ़िए। फुटनोट कहता है टुडेज गैदरिंग वाज अ सक्सेसफुल वन एज यू कैन सी फ्रॉम द विजुअल एटलस 60,000 पीपल अटेंडेड। यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 लोग, 60,000 पीपल अटेंडेड। मैं वापस आपको अभिजीत दिपके का बयान सुनवाता हूँ, और इसके नीचे फुटनोट में इन्होंने ग्लोबल ऑडियंस के लिए किस तरह से एक झूठ फैलाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से ये 6 से 7,000 कह रहा है, नीचे 60,000 पीपल इंग्लिश में और लिखा हुआ है। आगे ये आंदोलन Read the पूरे देश English भर में बढ़ेगा footnote. और जब तक धर्मेंद्र आप देखिए, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, सर्कल मार्क किया है। आप जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स में देखेंगे जहां इनके फुटनोट को, ये देखिए मैंने ब्लू इंक से सर्कल मार्क किया है 60,000 पीपल। ये इन्होंने ग्लोबल मीडिया को रिपोर्ट सेंड किया है। रिजाइन नहीं करते, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो दैट इज़ हाउ दे हैव सेंड द रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द पीपल, और लोगों को मूर्ख बना के, और इन्होंने इस तरह से अपना मॉडस ऑपरेंडी या इस तरह की कार्यशैली हमेशा रखी है। तो ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट में कितने नीट छात्र। आप नीट के छात्र? नहीं। आर यू नीट स्टूडेंट?
आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं मैम, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। आप नीट के छात्र हैं? नहीं। आर यू नीट स्टूडेंट? आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं मैम, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप नीट के स्टूडेंट हैं? नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पे फिर कौन था, राइट? तो किस तरह के लोग वहाँ पे थे? लस्सी उस लौड़े के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौड़े के नीचे से निकल जाओ, भोसड़ी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। तो इस तरह के लोग सीजेपी के प्रदर्शन में थे, राइट? तो ये देखिए ये किस तरह से जो लड़कियों ने बैनर लिए हुए हैं और देखते हैं कि किस तरह के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं ये कहूँगा कि चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है कि क्या आपके घर के परिवार में भी कोई सीजेपी प्रदर्शन या सीजेपी से एफिलिएटेड है? तो देखते हैं। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए तो भोसड़ी, नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की भोसड़ी, मोटा सारा गैंडा साल का बच्चा। और भी सीजेपी सपोर्टर्स को देखते हैं। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? बोल के दो, माचदा है, पकाओ, लोगों को चोदना बंद करो, सेहत के लिए अच्छा है। बहन के लोड़े माचदा, एसटीडी से भी नहीं मर रहा भाई, एड्स हो जाए भाई तेरे को। क्यों चोद रहा है देश को भाई? छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को चोदियो, देश को नहीं। चॉकलेट लेके गया था ना, कर ले शादी भी बहन चोद। मोदी को तो अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली के लोग इसमें एसोसिएट हैं तो हो सकता है लस्सी कि वो कहाँ हो सकते हैं। ये सीजेपी का जंतर मंतर में प्रोटेस्ट है और ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। अब क्योंकि यहाँ पे ये लड़की मास्क में है तो कह नहीं सकते ये कौन सी लड़की है, पर अगर आपके घर की लड़की और सीजेपी प्रोटेस्ट में जा रही है तो समझिए कि वो किस जगह जा रही है। और क्योंकि इस लड़की ने अपना चेहरा छुपाया है, आई कैन नॉट से हू शी इज। थोड़ा और देखते हैं। मोदी हगेगा, उसके पिछाड़े में कीड़े लगेंगे। मतलब क्या मोदी को पीरियड्स हो गया है? पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं उसे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप ऐसा मुंह क्यों? आप अपना वो देना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ? बताइए। ये भी देखते हैं। पहले चाय बेची, फिर मगरमच्छ पकड़ा,
फिर 35 साल तक भीख मांगी, फिर बांग्लादेश को आजादी दिला दी, फिर दिल्ली से एमए कर लिया, फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी, फिर गुजरात से एमए कर लिया, फिर गुजरात से बीए भी कर लिया, फिर 14वीं में फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी और बीच बीच में हिमालय जाकर तपस्या भी करा। Let us see. अभी देखते हैं कि ये जो वहाँ पे लोग वहाँ जमा हुए हैं यह सब करने के लिए, और आपकी फैमिली के लोग उसमें भी शामिल हैं, तो लेट अस सी। अब जरा से एक बार आप लोग इस नचनिया का वीडियो देखिए पहले। हाँ, मोदी तो चोर है, लेकिन तुम एक ऑर्केस्ट्रा नाचने वाली हो, ये बताओ ना। देख लो भाई, ठुमके देखो इसके, क्या ठुमके लगा रही है। तो ये इसका रियल काम है। ये इसका रियल काम है। अब जरा से एक तो बार आप लोग ये इस जो नचनिया इस तरह के लोगों को वहाँ लाया गया है, तो ये समझिए कि किस तरह के लोग वहाँ पे किस तरह से जमा किए गए, और इन तरह के लोगों से बाकी लोगों को जमा किया गया। तो अगर आपके घर के बच्चे भी, या आप सीजेपी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, तो यह समझिए कि आप के बच्चे क्या कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनके भी जो चेहरे, वीडियो, ये सब आने वाले हैं। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन का लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का, क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ चोद दूंगी। यह लॉकडाउन को वो क्रिटिसाइज कर रही है, जबकि लॉकडाउन किया था कोविड में लोगों को बचाने के लिए, बट बचे कौन? इन जैसी वैश्या प्रवृत्ति की ये जो बोली है, ऐसी बोलने वाली लड़कियां भी मोदी जी के लॉकडाउन की वजह से बची हैं। अब देखिए आगे, अगर आप इसमें ये देखिए कि खाली वो लड़की नहीं, इसमें और भी लड़कियां, लड़के आपको इसका वीडियो लेते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपको फक्र हो कि आपके बच्चे भी इसी तरह की चीज़ में शामिल हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को और इस तरह के सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जरूर भेजना चाहेंगे। डूब के मर जाइए, खाई में कूद जाइए, कैसे भी मर जाइए, बस आपसे नहीं होने वाला। हम संभाल लेंगे अपना देश, आप नहीं संभाल पा रहे। आपकी हो चुकी है उम्र, रिटायरमेंट लीजिए, घर पे बैठिए। घर नहीं है तो बाहर देश में घूमिए, वैसे भी आप घूम ही रहे हैं, जाइए। हाँ, क्यों? क्या आपको यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे नहीं दिख रहे? क्या वो जो वहाँ बैठे हैं वो आपको पढ़े लिखे नहीं दिख रहे? हम संभाल लेंगे। आप इस्तीफा दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज इस्तीफा दीजिए, निकल जाइए या मर जाइए। विश्व में डंका तो बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं, खुद की तो करा ही रहे हैं, पूरे भारत की ओर करा रहे हैं। इजराइल में नाच के आए और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? ये 34 कंट्रीज़ ने पीएम मोदी जी को अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है, और यह कोठे से उठाई हुई बोलने वाली भाषा बोलने वाली लड़की जो यहाँ पे नीट की परीक्षा में आई है, आई एम श्योर कि ये नीट का इसने एडमिशन पेपर भी नहीं भरा होगा, और यह ज्ञान दे रही है कि उनको मर जाना चाहिए।
ये लोग किस तरह से सड़क पे जिंदा हैं, मुझे यह सोच के शर्मिंदा है। चलिए एक और देखते हैं। भाई तेरे को तू नाकान की तो माँ की बड़ी नोज मोटी को पीरियड्स हो रहे हैं। कहना चाहती हूँ बस फूट नहीं बात, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ये कंपनी कब लगा अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी गांड क्यों नहीं दे देते हमें? तो डायपर लगाना चाहिए पैम्पर्स का, या फिर अडानी अंबानी बना देंगे तो उनकी कंपनी कब लगा सकते हैं, अच्छा ही बना देंगे। मोदी तेरी माँ का उसकी माँ अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी गांड क्यों नहीं दे देते हमें? इतने सारे हमारे मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लड़कों में इतना दम है, अगर एक बंदा भी आपकी गांड मारता तो आप मर ही जाते। शायद मेरे टेलीपैथी के थ्रू इसके पास थॉट पहुंच गया तो धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया, वरना आज मैं मांगने वाली थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी गांड दे दो। तो आप क्या लोगों ने देख लिया आप, तो प्रश्न ये है कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही देखना चाहोगे? एक और देखते हैं। घर पे दो दो गाड़ी भर भर के पुलिस आ रही है, ठीक है। मेरी माँ डिस्टर्ब हो गई है। मेरी माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो ये माँ जान लीजिए कि मैं फिर भरत तिवारी मैं भी बनूंगा। भले मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं भरत तिवारी बनूंगा। और मैं गगहा थाने से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग घर पे मत जाइए। आप लोग फोन की लेकर मैं आक्रोश में आकर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं और मेरे सब जो साथ में लड़का था, साथी जो था हमारा, वो हम लोग दोनों गाली दे दिए हैं, ठीक है। आक्रोश में आकर हम लोग गाली दिए हैं। इस चीज के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। सभी लोगों से जिन लोगों को ये बात बुरा लगा है मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। यही बात बोला हूँ कि मैं सनातनी धर्म, आप भारत में सनातनी देश बना रहे हैं भारत को, तो आप बाहर आपको जाके विदेश में ये सब बात नहीं कहना चाहिए था। ये बताइए हमारे घर पे, ठीक है, हमारे घर पे दो दो गाड़ी भर भर के पुलिस आ रही है, ठीक है। मेरी माँ डिस्टर्ब हो गई है। मेरी माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो ये माँ जान लीजिए कि मैं फिर भरत तिवारी मैं भी बनूंगा। भले मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं भरत तिवारी बनूंगा। और मैं गगहा थाने से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग घर पे मत जाइए। आप लोग फोन किए रहते हैं, तुम कहाँ हो, आओ थाने पे। मैं गया रहा था, आप लोग थाने पे चले जा रहे हैं। पूरे गांव खोज रहे हैं, 10-10, 12-12 लोग, दरोगा सिपाही सभी लोग मिलके गांव आप लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो ये गलत चीज है। तो कहने का मतलब यही है, देखिए मैं किसी दल का नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, समाज का सेवा करता हूँ, ठीक है। आप लोग कहीं भी पता कर लीजिएगा, मैं किसी दल का नेता नहीं हूँ। पवन भैया इस चीज को आप गलत वे में मत लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चीज को आप गलत वे में मत लीजिएगा। हाँ, आक्रोश में आकर हम लोगों ने गाली दिया है तो मैं इसके लिए दिल से हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आजीवन। तो यह जो सीजेपी में प्रदर्शन में जा रहे हैं उनके क्या हाल हो रहे हैं आप स्वयं देख रहे हैं। इसके लिए आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने घर की लड़कियों को, या वहाँ जो लड़कियाँ कर रही है, जो लड़की पे मास्क लगा हुआ था और जो मास्क हटा और जो हमने देखा, तो क्या आप इस तरह के अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें करने देंगे जो यहाँ पे हो रही है? और देखिए मास्क कभी भी उतर सकता है, इवन वहाँ पे भी आपके बच्चों के मास्क उतर सकते हैं। तो मेरी तो यह निजी राय है कि आप अपने बच्चों को डेफिनेटली ऐसे प्लेस पे जाने से बचाइए, क्योंकि आपके बच्चे किन हालात में अनमास्क होंगे यह आप भी जान के आपको बहुत गर्व होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।